how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is basics of Flash CS6. So what is this? This is an animation software. Step animation started off. So let's begin. Adobe Flash is a multimedia software. यहाँ का multimedia software है. It is used to create animations to display videos on website, to develop gaming software or mobile application and for many other things. Adobe Flash क्या आपका एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है, जो किस लिए यूज़ होता है, एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए वीडियोस को वेबसाइट्स पे, टू डेवलप वीडियो गेम्स, गेमिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए एंड मेनी अदर थिंग्स के लिए. इट इज़ अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर इन मल्टीमीडिया प्रोग्राम. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर आपके मल्टीमीडिया प्रोग्राम में. यू कैन मेक मीडिया रिच एप्लीकेशन बाय इंक्लूडिंग पिक्चर्स. आप मीडिया रिच एप्लीकेशंस बना सकते हो पिक्चर्स को इंक्लूड करके, साउंड को इंक्लूड करके, वीडियोस को एंड स्पेशल इफेक्ट्स. नाउ हाउ टू ओपन फ्लैश CX6. कैसे ओपन करते हैं? टू ओपन फ्लैश CS6, follow the steps given below. In Windows 7 you have to go on the start menu. After that a menu will appear. all आपको क्लिक करना है all programs के, फिर आपको वहाँ पे क्लिक करना है Adobe Flash CS6 Professional पे. The screen will appear in front of new. Flash was created by Future Wave. किसने क्रिएट किया था? Future Wave ने. ये क्या थी? मल्टीमीडिया कंपनी थी in 1990s guys. Viewing of Flash workspace. कैसा दिखता है आपका Flash का workspace? So this is the screen of Flash. ये this is your stage जहाँ पे आपकी चीज़ें होती है, आपका एप्लीकेशन परफॉर्म करती है. This is your menu bar. This is your property panel. This is your library panel. This is your toolbox and this is your properties inspector. This is your motion editor. This is your timeline. These are your frames. This is your layer. Now the Flash workspace consists of stage, properties panel, library panel, toolbox, motion editor, timeline, layers, frames, and property inspector. ये सब चीजें होती है आपके फ्लैश पे. So stage क्या होता है? The stage is a wide rectangular area. एक wide rectangular area होता है the Flash Professional CS6 के workspace पे. It looks like the canvas. किसकी तरह लगता है? white canvas की तरह लगता है. The objects which you will place on the stage will appear in your published movie. जो भी objects आप place करोगे वो आगे published movie में appear हो जाएगी. A gray area around the stage is called a pasteboard. जो gray area है उसके around इसको हम pasteboard कहते हैं. And the object placed in a pasteboard will not appear in a finished movie. जो object आपके pasteboard में होंगे वो आपके finished movie में appear नहीं होंगे. It's like a rough work area. Future Waves along with the Flash was soon bought in Macromedia around 1997. कब आया था Macromedia में? 1997 में आया था. Now let's talk about panels. Panels provide easy access to control that help you work with text or any content in your document. आप text से कोई content से work कर सकते हो document में. The figure given below shows panel. जो figure है ये क्या है? Panel इसकी है. So by default the properties panels and library panels are blocked. जो property panel और library panel वो docked है to the right side. The right side में आपके workspace के any available pattern can be opened by selecting it in the window menu. आप कोई भी window menu में select करके window menu में open कर सकते हो. By default, several panels are collapsed to icon. बहुत सारे panels collapsed है icon पे to make them easy to open while reducing clutters in the workspace. To open and close these iconic panels, आपको किस पे click करना होता है? उनके icons पे click करना होता है. So you can unlock panel groups, add panels to a group, undock individual panels, rearrange the order. आप rearrange कर सकते हो docked orders को panels के, and collapse कर सकते हो, close कर सकते हो panel groups को. To undock a panel, drag it by its tab. आप उसके tab से drag कर सकते हो title bar में away from its current position. You can drag it into the dock. आप dock के अंदर भी drag कर सकते हो to make it free floating. Toolbox or tool panel. The tools are in the tool panel helps you to draw and paint, select, modify artwork. ये help करता है तो करने पेंट करने select करने में आपके artwork को and to change the view of the stage. this आपका view changes are आपके stage का. This is your tool panel. So there are the different tools. They are named over here like this. The options area at the bottom of the tools panel allow you to modify
a tool you have selected. जो ऑप्शन है बॉटम में वो मॉडिफाई करने में हेल्प करता है जो आपने टूल सेलेक्ट करे हैं. If the tool panel is not visible, अगर आप पर tool panel visible नहीं है, you can display it by selecting window tools. आप display कर सकते हो window पे जाके then tools पे जाके. तो select a tool, just click it. अगर आपको कोई भी tool select करना है तो आप उसको एक बार click करना है. Properties for selected tools appear in the property panel. जो selected tools की properties कहाँ पे आई? Property panel में आ जाती हैं. Now let's talk about motion editor. मोशन एडिटर लेट यू क्विकली ट्यून द मोशंस. ये क्विकली ट्यून करने में हेल्प करता है मोशंस पे, ट्रांसफॉर्मेशंस पे, कलर्स इफेक्ट्स में एंड मेनी अदर थिंग्स में. टाइमलाइन और टाइमलाइन पैनल्स, frames and property key traits. What are these? In timeline panel you can control the images and sounds in your flash document. आप images को sounds को कंट्रोल कर सकते हैं अपने flash document में. The timeline is divided into frame. timeline किस में डिवाइड कर? frames में डिवाइडेड होता है आपके. So you can work with these frames to organize and control the content. आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइज करने के, कंट्रोल करने के लिए कंटेंट को ऑफ योर डॉक्यूमेंट. A keyframe indicates a change. एक keyframe क्या इंडिकेट करता है? चेंज ओकर होता है आपके टाइमलाइन पे. फॉर एग्जाम्पल a keyframe can indicate the movement. एक मूवमेंट इंडिकेट करता है that which a graphic image appears or change in the movie. It can also include action script. इसमें action scripts कोड होता है to control some aspect of your document. You can also add a blank keyframe. A blank keyframe को भी add कर सकते हो to the timeline as a placeholder for symbols which you can plan to add later. From Flash version 2 to 8, it was called Macromedia Flash. Now it is Adobe Flash. अब इसको क्या कहते हैं? Adobe Flash कहते हैं. A property keyframe is frame in which you define a change. ये frame होता है जिसमें आप define करते हैं change को to an object properties for an animation. Flash can tween or automatically fill in the property value between keyframes and to produce fluid animations. So ये क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है आपकी फ्लूइड एनिमेशंस को. सो बिकॉज प्रॉपर्टी keyframe लेट यू प्रोड्यूस, ये आपको हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में एनिमेशंस को विदाउट ड्रॉइंग ईच इंडिविजुअल फ्रेम. अलग अलग इंडिविजुअल फ्रेम ड्रॉ करे बिना भी हेल्प करता है. दे मेक क्रिएटिंग एनिमेशंस ईजी. इससे आपकी जो एनिमेशंस होती है बहुत ईजी हो जाती है क्रिएट करना. अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स कंटेनिंग ट्वीट एनिमेशंस इज कॉल्ड मोशन ट्वीन. तो एक सीरीज होती है ट्वीन एनिमेशंस, इसको मोशन ट्वीन कहते हैं. Current frame rates, elapsed time are also all shown at the bottom of the timeline. कहाँ मिलती है? बॉटम में टाइमलाइन के पैनल के. The playhead represented by a red rectangle. जो playhead है जिससे रिप्रेजेंट होता है रेड रेक्टेंगल से with a long red line show the current frame. जो long red line होती है वो क्या शो करती है? करंट फ्रेम को शो करती है. Then you are viewing in a timeline. जो आप व्यू कर अपने टाइमलाइन में, you can click a frame to move the play. आप क्लिक कर सकते हो फ्रेम को मूव करने के लिए playhead को to that frame. We can drag the playhead up. Drag कर सकते हो playhead back को backward and forth on the timeline to quickly view all the view और आप कोई भी पूरे उसको भी व्यू कर सकते हो, एक पार्ट को भी व्यू कर सकते हो अपनी एनिमेशन के layers in the timeline. मैंने provide a way to organize the element. या को वे प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए एलिमेंट्स को ऑफ योर मूवी. You can draw and edit objects. आप ड्रॉ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स ऑन वन लेयर without affecting objects. परफेक्ट करे हुए ऑब्जेक्ट्स को और दूसरे लेयर के. लेयर्स कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. में क्या कंट्रोल करते हैं? स्टैकिंग ऑब्जेक्ट्स को और स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स के. द ऑर्डर मूव्स फ्रॉम टॉप टू ऑर्डर. ऑर्डर का मूव करता है टॉप से बॉटम की तरफ. सो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड इन फ्रंट आर इन द टॉप लेयर. जो अपने फ्रंट में डिस्प्ले होते हैं वो कहाँ होते हैं? टॉप लेयर में. Which object displayed in the back are in the bottom layer. जो बैकवर्ड होते हैं वो बॉटम लेयर में आ जाता है. This allows you to place objects in front और behind one another. ये आपको अलाउ करता है फ्रंट में या बिहाइंड अरेंज करने के लिए. सो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ योर लेयर्स, अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है, आपको ड्रैग करना होता है लेयर को, नेम को टू अ न्यू पोजीशन. द लेयर कंट्रोल्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड. कहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपकी टाइमलाइन के. ईच लेयर हैज एन ऑप्शन. हर लेयर में एक ऑप्शन होता है हाइडिंग का, शोइंग का, लेयर को, लॉकिंग इट एंड डिस्प्लेइंग इट कंटेंट्स एज आउटलाइन. नाउ एडिट बार क्या है? So edit bar is placed at the top of the stage. ये आपके top में होता है आपके stage के. It helps you to quickly navigate between the different parts of your Flash document. आप easily navigate कर सकते different parts अपने document के. It also helps you to switch between scenes. आपको help करता है switch करने में scenes के and symbols के बीच में. You can also change the magnification level of the stage. आप magnification level को भी change कर सकते हो अपने stage के. Now creating a new workspace. कैसे new workspace को create करते हैं?
टू क्रिएट अ न्यू कस्टम वर्कस्पेस फॉर द स्टेप्स गिवन बिलो, आपको किस पे क्लिक करना है, फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन क्लिक करना है आपको न्यू पे। एंड एम्प्टी फ्लैश डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चेंजेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस पे, सच एज ओपन एंड न्यू पैनल्स और क्लोज न्यू पैनल्स पे। चूज करना है आपको विंडोज, देन वर्क स्पेस, देन न्यू वर्क स्पेस ऑप्शंस, और चूज कर सकते हो न्यू वर्क स्पेस इन द वर्क स्पेस फीचर ऑल्सो। Adobe Flash is used commonly in the internet by web browser. commonly कब होता है, इंटरनेट पे यूज होता है, आपके वेब ब्राउजर में commonly यूज होता है ये। द न्यू वर्कस्पेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एज गिवन बिलो, इस तरह से ओपन होगा न्यू वर्कस्पेस डायलॉग बॉक्स आपका। एंटर करना है आपको नेम, आपको अपने न्यू वर्कस्पेस का, देन आपको क्लिक कर देना है ओके पे। टाइप्स ऑफ सेलेक्टिंग टूल्स एंड यूजेस, कैसे सेलेक्ट करते हैं टूल्स को और कैसे यूज करते हैं। सेलेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका मैनिपुलेटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन अ फ्लैश डॉक्यूमेंट। Selection of elements of objects in Flash enables you to copy, move, delete और edit। जब आप select कर लेते हो तो आप इजीली copy कर सकते हो, delete कर सकते हो या फिर move कर सकते हो उनको। The selecting tools are given below। या क्या क्या tools होते हैं selection के, several ways होते हैं आपको selection के। selection tools क्लिक करना है आपको ऑब्जेक्ट पे, उसको select करने के लिए उसको आप ड्रैग कर सकते हो या फिर move कर सकते हो, move object to move it। और सब सिलेक्शन टूल होता है आपका सेलेक्ट एंड मूव पॉइंट्स, पॉइंट्स को ही मूव करता है। और एडिट पाथ्स बिटवीन एडजेसेंट पॉइंट। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल रीसाइज और रोटेट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स बाय ड्रैगिंग, रीसाइज करता है या रोटेट कर देता है उसे ड्रैग करके। ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल ट्रांसफॉर्म सा ग्रेडियंट और बिट मैप ट्रांसफॉर्म करता है ग्रेडियंट्स और बिट मैप को, उसको साइज को एडजस्ट करके डायरेक्शन को और सेंटर ऑफ द फिल को। 3D रोटेशनल टूल, so rotates movie clip instances in 3D space। 3D space में rotate करता है। A 3D rotational tool control appears on the top of selected objects। यहाँ पे appear होता है top में selected objects या stage पे। The X control is red, जो X control होता है वो red होता है। The Y control green होता है और Z control आपका blue होता है। 3D translation tool moves movie clips instances in 3D space। 3D space में वो पता है when you select a movie clip, जब आप select करते हैं movie clip को टूल से, इट्स एक्सेस XYZ अपीयर होता है अपने स्टेज के टॉप पे अपने ऑब्जेक्ट के। द एक्स एक्सेस रेड, द वाई एक्सेस ग्रीन होता है, जेड एक्सेस आपका ब्लू होता है। लेसर टूल, द लेसर टूल इज वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल होता है आपका when you want to select the shapes that are too close to the object। जब आपको शेप सेलेक्ट करने जाओ जो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके ऑब्जेक्ट के, that you don't want to select, or when you want to select the regular shapes, this tool allows you to drop, ये आपको हेल्प करता है ड्रॉ करने में शेड्स को, इन फ्री सेलेक्टिंग एवरीथिंग कंटेन्ड इन द शेड्स यू ड्रॉ। द लेसर टूल्स हैव टू मोड, जिसके दो मोड्स होते हैं, मैजिक वैन एंड पॉलीगन मोड। इट इज अ फ्री हैंड सिलेक्शन टूल, या फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है। फ्लैश वॉज अर्लियर कॉल्ड एज फ्यूचर फ्लैश एनिमेटर, इसको पहले हम क्या कहते थे, फ्यूचर फ्लैश एनिमेटर कहते थे। पेन टूल, Flash provides a number of ways to draw and edit objects। ये आपको बहुत सारे ways provide करता है ड्रॉ करने के लिए, एडिट करेंगे ऑब्जेक्ट को in a unique that are unique to Flash। This tool is used to draw precise paths। आप precise paths को draw कर सकते हो, straight lines और smooth flowing curves। You can also use tools arrow, आप pen tool arrow को भी यूज कर सकते हो to select करने के लिए different fan को, to add, to delete or to convert anchor। Now drawing straight line with pen tool, कैसे straight line draw करते हैं pen tool से। The simplest path you can draw with the pen tool is a straight line। है simplest path होता है जो आप pen tool से draw कर सकते हो। कैसे, जो made by clicking the pen tool to create two anchor points, two anchor points बनाते हैं। Continue to click to up create a path made of straight line, continue करना है create करने के लिए एक straight line segment को जो connected होता है corner point से। To draw a straight line with pen tool, follow the given steps। अगर आपको straight line draw करनी है आपको कुछ steps follow करने पड़ेंगे। पहले आपको select करना है pen tool को, then आपको position करना है, position the pen tool bears the जहाँ पे आपको straight line draw करनी है, and click करना है आपको define the first anchor point पे। if direction line appear, जो आपकी direction line appear होगी, that means you have accidentally dragged, मतलब कि आपने accidentally drag कर दिया pen tool को। चूज करना है, एडिट करना है, अनडू भी कर सकते हो, फ्लिक अगेन भी कर सकते हो। क्लिक अगेन पे यू वांट द सेगमेंट टू एंड, आपको क्लिक करना है फिर से जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका सेगमेंट एंड हो। प्रेस शिफ्ट एंड क्लिक टू कॉन्स्ट्रेंट, आपको प्रेस करना है, क्लिक टू क्लिक करना है टू कॉन्स्ट्रेंट द एंगल
of the segment to a multiple of 45 degree. 45 degree के मल्टीपल पे भी कर सकते हो. Continuing clicking to set anchor points. Continue करो, क्लिक करते रहना अगर आपको एंकर पॉइंट सेट करना है एडिशनल स्ट्रेट सेगमेंट्स के लिए. ठीक है, पेन टूल क्रिएट्स अ सेगमेंट, स्ट्रेट सेगमेंट. अगर क्लिक करोगे पेन टूल को आपका स्ट्रेट सेगमेंट भी बना सकता है. टू कंप्लीट द पाथ एज एन ओपन और क्लोज शेप. अगर आपको ओपन या फिर क्लोज शेप बनानी है, डू वन ऑफ द फॉलोइंग. आप इस चीज को कर सकते हो. टू कंप्लीट एन ओपन पाथ, अगर आपको ओपन पाथ करना है आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा लास्ट पॉइंट पे. क्लिक द पेन टूल इन द टूल पैनल. पेन टूल को क्लिक करना है टूल पैनल पे और कंट्रोल क्लिक एनीवेयर अवे फ्रॉम द पाथ. टू क्लोज द पाथ पोजीशन द पेन टूल्स. आपको पोजीशन करना है पेन टूल्स को ओवर द फर्स्ट फॉलो एंकर पॉइंट्स. A small circle appeared next to pen. एक small circle appear होगा next to pen. Tool pointer when it is positioned correctly. Click करना है आपको, ड्रैग करना है क्लोज करने के लिए पाथ को. To complete the shape as it is, फिर select करना है आपको edit पे, then जी select all करना है और select the different tools in the tool panels. different tools को select करना है tool panel में. Drawing curves with pen tool. कैसे curve draw करते हैं pen tool से? To create a curve, add an anchor point. आपको anchor point को add करना है. Where a curve changes direction, यहाँ पे curve चेंज करता है डायरेक्शन एंड ड्रैग द डायरेक्शन लाइंस दैट शेप्स द कर्व. आपको डायरेक्शन लाइन ट्रैक करनी है जो शेप करती है कर्व को. द लेंथ एंड स्लोप ऑफ द डायरेक्शन लाइन डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व. जो लेंथ और स्लोप होता है द डायरेक्शन लाइन को डिटरमाइन करता है शेप आपकी कर्व्स की. कर्व्स आर इजियर टू एडिट. कर्व्स इजियर होता है एडिट करने के लिए. योर सिस्टम कैन डिस्प्ले एंड प्रिंट देम फास्टर. आपका सिस्टम डिस्प्ले कर सकता है, प्रिंट कर सकता है फास्टर if you draw them using a few anchor points as possible. Using too many points, अगर आप बहुत ज़्यादा points को use करते हो can also introduce unwanted bumps. इससे क्या होता है, unwanted bumps आ सकते हैं एक कर्व में. Draw widely spaced anchor points. आप widely spaced anchor points को draw कर सकते हो. Practice कर सकते हो shaping curves by adjusting the उसकी lengths को and angles को adjust करके direction line पे. So to draw curve with pen tool, अगर आपको कर्व ड्रॉ करना है अपने पेन टूल से, फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट आपको सिलेक्ट करना है अपने पेन टूल को, पोजीशन करना है आपको अपने पेन टूल को वेयर द कर्व्स इज टू बिगिन. जहाँ से आपका कर्व बिगिन होना है होल्ड करके रखना है अपने माउस बटन को. देन द फर्स्ट एंगल पॉइंट अपीयर है, आपका फर्स्ट एंगल पॉइंट अपीयर हो जाएगा एंड द पेन टूल पॉइंटर चेंजेस टू एन एरो हेड. आपको एंड करना है एरो हेड में चेंज होते हुए उसे. ड्रैग टू सेट द स्ट्रोक्स. ड्रैग करना है उसको स्ट्रोक को सिलेक्ट कर सेट करते हैं कर्व सेगमेंट थ्रू अ क्लियरिंग एंड देन मीज. तो देन अपने माउस बटन को इन जनरल एक्सटेंड करने आपको डायरेक्शनल लाइंस अबाउट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 1/3 तक आपको एक्सटेंड करनी है डिस्टेंस टू द नेक्स्ट एंकर पॉइंट यू प्लान टू ड्रॉ. तो उसके बाद आपको यू कैन एडजस्ट वन और बोथ साइड. आप एक या दोनों साइड्स को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन के लिए लाइन डायरेक्शन में. होल्ड डाउन द शिफ्ट की. आपको क्या करना है, होल्ड डाउन रखना है शिफ्ट की को टू कॉन्स्ट्रेन द टूल्स टू मल्टीपल और 45 डिग्री. पोजीशनिंग पेन टूल. होल्ड पोजीशनिंग पेन टूल होता है स्ट्रेट स्टार्टिंग टू ड्रैग. माउस बटन प्रेस करके रखना है, ड्रैगिंग टू एक्सटेंड डायरेक्शन लाइंस. पोजीशन द पेन टूल्स where the curve segment is to end and do one of the following. आपको एक चीज करनी है to create a C shape. अगर आपको C shape कर्व बनाना है then आपको ड्रैग करना है डायरेक्शन को अपोजिट टू प्रीवियस डायरेक्शन लाइन एंड रिलीज द माउस बटन. आपको फिर अपने माउस बटन को रिलीज कर देना है. टू क्रिएट S शेप, अगर आपको S शेप बनानी है देन ड्रैग इट इन द सेम डायरेक्शन में ड्रैग करना है उसे प्रीवियस डायरेक्शन लाइन एंड रिलीज कर देना अपने माउस बटन को. टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ स्मूथ कर्व्स. अगर आपको स्मूथ कर्व्स की सीरीज बनानी है उसकी कंटिन्यू करते रहना है ड्रैगिंग को पेन टूल को फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन. प्लेस एंकर पॉइंट्स एट द बिगनिंग. एंकर पॉइंट को बिगनिंग में प्लेस कर देना है एंड एंड ऑफ ईच कर्व में भी प्लेस कर देना है, नॉट एट द टिप पैड नहीं करना ऑफ कर्व. टू ब्रेक आउट द डायरेक्शन लाइंस ऑफ एन एंकर पॉइंट्स क्लिक करना है आपको ऑल्ट या फिर ड्रैग पे और को फिर करके ड्रैग करना है. टू कंप्लीट द पाथ. अगर आपको पाथ कंप्लीट करना है डू वन ऑफ द फॉलोइंग. क्लोज द पाथ. अगर आपको पाथ क्लोज करना है पोजीशन करना है पेन टूल को ओवर द फर्स्ट हॉलो पे क्लिक करना है एंकर पॉइंट पे. स्मॉल सर्कल अपीयर नेक्स्ट टू द पेन टूल पॉइंटर. एक स्मॉल छोटा सा सर्कल बनेगा पेन टूल के पॉइंटर के अलग बिल्कुल एक लाइक दिस. When it's position करेक्टली, जब आप उसको करेक्टली पोजीशन करोगे क्लिक और ड्रैग क्लोज का पाथ. आपको क्लिक करना है, ड्रैग करना है, फिर पाथ को क्लोज कर देना है. तो लीव द पाथ ओपन कंट्रोल क्लिक्स. अगर आपको पाथ ओपन चुना है कंट्रोल क्लिक्स देन एनीवेयर अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. साइड बूट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट द डिफरेंट टूल. एक दूसरा टूल सेलेक्ट करना है और चूज एडिट
और डीसेलेक्ट ऑल, आप एडिट को चूज करें, डीसेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हो। नाउ रेक्टेंगुलर टूल, यू कैन यूज रेक्टेंगुलर टूल। आप रेक्टेंगुलर टूल को यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, अगर आपको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर के शेप को ड्रॉ करना है। सो टू डू सो यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। फर्स्ट आपको क्लिक करना है ऑन द रेक्टेंगुलर टूल इन द टूल विंडो। A property window will appear showing the property. Property window appear होगी, property show करती है rectangle tools में। Then click and drag on the stage. आपको click करना, drag करना है stage पे to create a rectangle. Create rectangles composed of fills. आपको create करना rectangle किससे composed? Fill से, strokes से, just fill और just strokes. Flash also has the Flash पे क्या होता है? Polystar tool, so that create either polygon or star shapes. You can set how many points both shapes have. The oval tools to create circle and ovals the rectangle. What is the rectangle? Primitive tools and oval primitive tools. Primitive shapes are individual objects. से क्या होती है? आपकी individual object होती है that can be edited in properties panels. उसको आप अपनी properties panel में edit कर सकते हो. Pencil tool. A pencil tool is a freehand drawing tool. ये आपका freehand drawing tool होता है. This tool helps to draw lines in straight mode. आप straight mode में, smooth mode में and ink mode में draw कर सकते हो. The sets to draw with pencil are given below. First आपको select करना है pencil tool को, then आपको select करना है अपना stroke का color, कि किस color का आपको stroke चाहिए, line weight and style from the property inspector panel and draw करनी है अपनी lines. The straighten mode is selected by default. जो straighten mode है defaultly selected होता है. This mode automatically straightens the line. जो mode है automatically straight कर देता है अपनी lines को. Drawing by pencil tool. The smooth mode smoothes the jerks on the edges. जो smooth mode है smooth करता है आपके jerks को edges पे. The ink mode helps in freehand drawing. जो ink mode होता है help करता है आपको freehand drawing में with no modification. Apply. Bone tool allows you to add bones. ये आपको allow करता है bones add करने के लिए to set the object in rotation. इस आप object को set कर सकते हो rotation में to each other. It is mainly used to create human movements. इससे आप human movements कर सकते हो in arms, legs, to board movements भी कर सकते हो. स्टेप्स टू यूज बोन टूल्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसको यूज करने के लिए? आपको लोड करना है फ्लैश और क्लोज करना है करंट फाइल्स को एंड क्रिएट करना है आपका न्यू एक्शन स्क्रिप्ट 3.05। देन अप्लाई करना है आपको अप्लाइंग बोन टूल, प्रेस करना है आपको कंट्रोल एंड जूम द व्यू 200% तक जूम कर देना है। जब आप उसको रिलीज करोगे माउस बटन को, द फर्स्ट बोन स्टेटेड जो होगी, फर्स्ट बोन होगी वो क्रिएट हो जाएगी। देन रिलीज करना है आपको माउस बटन को क्रिएट करने के लिए सेकंड बोन को। नोइंग knowledge part about some other tools that are used in Flash। कुछ और टूल्स जो हमारे फ्लैश में यूज होते हैं। ब्रश टूल होता है, स्प्रेड ब्रश टूल होता है, डेकोर ड्राइंग होता है, मेनी अदर्स। ब्रश टूल शेप्स विद फिल्स ओनली, ये फिल्स करता है शेप्स को आपकी। स्प्रे टूल, स्प्रे ब्रश टूल, द स्प्रे ब्रश एक्ट लाइक अ पार्टिकल स्प्रे, ये पार्टिकल स्प्रे की प्रेस करता है, letting a brush a pattern or shapes in onto stages at one time। By default, the spray brush emits a spray of dots। ये emit करता है spray किससे? dots की, particles की, using the currently selected fill color। However, you can use the spray brush tool। use the spray brush tool को to apply a movie clip। अगर आपको मूवी क्लिप अप्लाई करना है ग्राफिक सिंबल्स पे एज अ पैटर्न। डेको ड्राइंग टूल इज यूज्ड टू अप्लाई एनी इफेक्ट्स। आप कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे। To choose effect from the properties panel। Blend tool, the blind tool allows you to click a control point। या आपको allow करता है कि allows to click कर सकते हो control point को और bone and display the connections between। आप display कर सकते हो connection between the bones and control points। You can then change the connections in a variety of ways। आप connections को change कर सकते हो बहुत सारे ways में। Paint bucket tool, it adds fill inside a shape or change the fill color। या fill inside a shape को change करता है या फिर change कर सकता है आपके change करता है आपके fill color को। ink bottle tool, it is used to change the color। ये किससे use by color को change करने के लिए with bit of a line or add a stroke to a shape। ये stroke भी add करता है आपकी shape में। eyedropper tool, samples a color from stage or anywhere on the screen। Eraser tool, it is used to erase the parts of an image। किससे यूज द इरेज करने के लिए कोई पार्ट आपकी इमेज का। टूल्स यूज फॉर व्यूइंग के लिए जो टूल्स यूज होते हैं। हैंड टूल्स, ड्रैग द स्टेज टू व्यू अनदर पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप ड्रैग कर सकते हो स्टेज को, कोई भी पार्ट ऑफ द
वो डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए जूम टूल इस साथ जूम हो जाता है आपका पिक्चर इज यूज टू जूम अ पिक्चर फॉर बेटर व्यू पॉइंट इन अ पिक्चर। आप इजिली बेटर व्यू पॉइंट पे जा सकते हो तो जूम आउट फोल्ड डाउन द ऑल्ट की। अगर आपको जूम आउट करना है फोल्ड करके रखना अपने ऑल्ट की को। एन एवरेज पर्सन नॉर्मली ब्लिंक्स 20 टाइम्स अ मिनट। जो एक एवरेज पर्सन होता है 1 मिनट में 20 टाइम्स ब्लिंक करता है। बट व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर नीचे ब्लिंक्स ओनली 7 टाइम्स अ मिनट। अगर वो कंप्यूटर यूज करता है वो खाली 7 टाइम्स ही ब्लिंक करता है। मेकिंग चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। चेंजेस कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट में? यू कैन मेक चेंजेस और मॉडिफाई योर एक्जिस्टिंग fields and strokes. Flash provides two methods for modifying existing fields and stroke. दो methods provide करता है Flash हमें। You can apply new attributes. आप new attributes को apply कर सकते हो with a tool. The paint bucket tool for fills and the ink border tools for strokes. paint bucket tools को fills के लिए, ink bucket tool को आप strokes के लिए apply कर सकते हो। और आप select कर सकते हो fill और strokes on the state and choose कर सकते हो new attributes को in appropriate panel. For fills or stroke that contains a gradient, you can also modify the way the gradient fits. आप modify कर सकते हो कि जैसे gradient fits कर रहा है and the shape by using the gradient transform tools. To fill color with the paint bucket tool. अगर आपको paint bucket tool से color को fill करना है आपको कुछ steps को follow करना पड़ेगा. The very first step you have to follow is you have to click on in the tool panel. Click करना आपको active edit पे, active edit fill stroke tool पे. Then select करना है आपको पेंट बकेट को वहाँ टूल से फ्रॉम द सब मेन्यू से सेलेक्ट करना है देर और प्रेस करना है ओके को। सिलेक्ट करना है आपको न्यू फिल एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है। क्लिक करना है आपको पेंट बकेट पे हॉटस्पॉट फिर द टिप ऑफ द ड्रिप ऑफ पेंट समवेयर इनसाइड द फिल यू वांट टू चेंज। टिप करना है जहाँ भी आपको चेंज करना है। द फिल कैन बी सिलेक्टेड और डीसिलेक्टेड। जो फिल आप सिलेक्ट भी कर सकते हो डीसिलेक्ट भी कर सकते हो। The fill changes to the new color. जो fill होगा वो आपके न्यू कलर में चेंज हो जाएगा। येलो से ये हो गया ग्रीनिश ब्लू। क्लिक अप fill with paint bucket tool. आप क्लिक कर सकते हो fill को paint bucket tool से to apply the color currently selected in the fill. Color control use the technique to change existing files. आप चेंज कर सकते हो टेक्निक को आप चेंज कर सकते हो टेक्निक्स को चेंज करने existing files को. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.